بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیا فراغنوزیشن سالگوڑ کی ٹیم ہیموفیلیا پیشنٹ کے گھر آئی ہے جس کا نام ہے آلیان. شہابپورہ میں یہ پیشنٹ ہے اور اس ٹائم ہم ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں. آلیان ہے، ان کی مدر ہے اور ان کے فادر ہیں ہمارے ساتھ. تو آج انشاءاللہ ہم آلیان کی مدر سے، ان کے والد صاحب سے آلیان کی سٹوری جانتے ہیں کہ آلیان کب ڈائیگنوز ہوا کہ یہ ہیموفیلیا کا پیشنٹ تھا، اور ابھی تک 10 سالوں میں انہوں نے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈی سے جو کہ آلیان کی مدر ہیں. کیا حال ہے انڈی، ٹھیک ہے آپ؟ انڈی کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. اچھا، آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں تو آج ہم آپ سے جانیں گے آلیان کی سٹوری. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آلیان کتنی دیر کا تھا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ ہیموفیلیا جیسی جو جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے؟ یہ 1.5 سال کا تھا تب پتا چلا تھا اس کے نوز سے نا بلیڈ ہوتا تھا. اچھا. تو پھر ہمیں تو نہیں تھا پتا، تو ہم ناک اور کان والے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، آفتاب سمرو کے پاس لے کے گئے تھے. اچھا. پھر اس نے اس کا آپریٹ کیا تھا ایک سائڈ کا، تو پھر دوسری سائڈ سے اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو پھر ہم لے کے گئے تھے سی ایم، تو ادھر بھی اس کا نا آپریٹ ہوا تھا. تو پھر دونوں سائڈ سے اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو پھر ادھر ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے تھے، تو پھر پتا چلا تھا کہ اسے ہیموفیلیا اے ہے. اچھا، سی ایم ایچ سے ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے؟ جی سی ایم سے ہوئے تھے. سی ایم ایچ سالگوڑ سے ہوئے تھے؟ جی سیالکوٹ سے ہوئے تھے. اچھا، پہلے ڈاکٹر ویسے ہی آپریٹ کرتے رہے ہیں اس کا؟ ویسے ہی آپریٹ کرتے رہے، وہ کہتے تھے اس کی وینے ویک ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، تو سی ایم ایچ میں جب آپ نے ٹیسٹ کروا لیے جی تو پھر ڈاکٹر نے کیا کہا، اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے یہ بولا تھا کہ اسے ہیموفیلیا اے ہے، تو اسے وائٹ سیل یا فیکٹر لگے گا اسے. اچھا. تو پھر ڈاکٹر سالیہ نے ہمیں بتایا تھا، تو پھر ہم لے کے آئے تھے دیا ویلفیئر میں. کتنے سال کا تھا جب اسے دیا میں لے کے گئے تھے آپ؟ 1.5 سال کا تھا، 2 کا اتنا ہی تھا. تو ماشاءاللہ کتنی دیر کا ہو گیا؟ اب 10 سال کا ہے، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ مجھے بتائیں گے انڈی کہ صرف سی ایم ایچ سے سیدھا آپ کو پتا چلا تو آپ یہاں آگے دیا ویلفیئر میں؟ جی. اس کے علاوہ کہیں اور تو نہیں لے کے گئے اسے؟ نہیں، اور کہیں بھی نہیں لے کے گئے. تو 10 سال سے آپ اسے کیا لگوا رہے ہیں؟ فیکٹر لگوا رہے ہیں، تو اب کافی بہتر ہے. اچھا. پہلے سے اس کے منہ سے بھی بلیڈ ہوتی تھی، نوز سے بھی ہوتی تھی، تو کافی مشکل اٹھائی ہم لوگوں نے. اچھا، آپ مجھے انٹی تھوڑا بتائیں کہ جب رات کے ٹائم کبھی سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ رات کے ٹائم وہ دیا والوں نے دیا ہوا ہے کیپسول، وہ دیتی ہوں، تو پھر میں لے جاتی ہوں دیا والے کے پاس، کال کرتی ہوں میں، تو وہ کہتے ہیں لے آؤ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ ایک ہی بیٹا ہے ہیموفیلیا کا؟ جی ایک ہی بیٹا ہے، ایک بیٹی میری ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا، بیٹا ایک ہی ہے. تو یہ پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے 1 کلاس. کون سی کلاس میں؟ 1 کلاس میں تو پڑھتا ہے. یہ 10 سال کا ہو گیا ابھی تک یہ 1 میں ہے، اسکول نہیں جب بھیجتے اسے داخل نہیں کروایا ہوا؟ نہیں، یہ پہلے نا اس کی ایک ویک میں 2-3 دفعہ اس کی بلیڈنگ ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے میں نہیں بھیجتی تھی اسے. تو اب کافی بہتر ہے، تو اب جا رہا ہے اسکول، ریگولر جا رہا ہے، قاری صاحب سے بھی کہا ہے. چلے. جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کے ناک سے منہ سے خون آتا ہے تو اسے کوئی چوٹ لگتی ہے؟ نہیں، ویسے سویا ہوتا ہے تو اٹھتا ہے تو اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. کتنی کو بلیڈنگ ہوتی ہے؟ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، جب تک یہ فیکٹر نہ لگے تو رکتی نہیں ہے. اچھا، تو اسے کتنے دن تک بلیڈنگ جو ہے اس کی سٹارٹ رہتی ہے؟ ایک ویک اس کی سٹارٹ رہتی ہے. اب تو ٹھیک ہے، کافی بہتر ہے. انڈی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سی ایم ایچ سے پتا چلا آپ کو کہ یہ ہیموفیلیا کا مریض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خون کی جان لیوا بیماری ہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ چلنی ہے، تو تب آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ اس کا تو علاج بھی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان میں میڈیسن بنتی ہے، تو پھر آپ نے کیا سوچا تھا کیا بنے گا اس کا؟ مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا اس بیماری کا، یہ کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہے. جب اس کی بلیڈنگ ہوتی تھی بہت زیادہ منہ سے اور نوز سے، ابھی بھی اس کا نوز دیکھیں تو ایک ویک اس کی ہوتی رہتی ہے. تو پھر میں جاتی ہوں دیا والوں کے پاس، نوز پیک ہوتی ہے اس کی منہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس سے فیکٹر لگتے ہیں، 2 ٹائم لگتے ہیں، صبح بھی لگتے ہیں، شام کو بھی لگتا ہے. پورا
पूरा पूरा वीक लगते रहते हैं। तो अच्छा। इतनी ज्यादा इसकी ब्लीडिंग होती है कि बहुत ज्यादा, मुंह से बहुत ज्यादा होती है इसकी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो इसको फैक्टर लगते हैं वो आप खुद खरीद के देते हैं या दिया वाले खुद से लगाते हैं? नहीं नहीं, वो खुद लगाते हैं, अपने पास से लगाते हैं। तो वैसे ये फैक्टर मिल जाती है बाजार से, मार्केट से? नहीं, बाजार से नहीं ये मिलते, ये दिया वाले लगाते हैं। 2 टाइम इसे लगते हैं, पूरा पूरा वीक लगते रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा आंटी, मैंने ये पूछा है कि जब पहले दिन आपको पता चला था कि आपका बेटा हीमोफीलिया का मरीज है, तो तब आपको पता भी नहीं था ये बीमारी क्या है, तब फिर आपने क्या सोचा था कि इसका इलाज आप कहाँ से कैसे कराएंगी आप? ये तो मुझे नहीं था पता, तो फिर डॉक्टर ने बताया था कि इसे फैक्टर लगनी है। तो वही ना, डॉक्टर ने तो बता दिया ना आपको फैक्टर लगना है। तो जब एक सुनती है, एक माँ सुनती है, तो ये कि पूरी जिंदगी आपके बच्चे को बीमार रह जानी है, तो तब आपके ज़हन में क्या आया था? उस टाइम तो मुझे रोना ही आया था, बस मैं बहुत ज्यादा रोती थी कि मेरा एक ही तो बेटा है, यही बेटा है, एक बेटी है और एक बेटा है। तो बहुत ज्यादा रोती थी कि अब क्या बनेगा इसका। तो अब मुझे ये बताएं कि आप 10 साल से दिया में जा रही हैं, अब ऐसी है, जी और इसको फैक्टर्स लग रहे हैं, जी तो जब भी जरूरत पड़ती है फैक्टर आराम से मिल जाता है दिया जी, से? आराम से मिल जाता है। मैं कॉल करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं आए इसे। तो रात को भी कभी जरूरत पड़े तो मिल जाती है? रात को भी मिल जाए, ईद वाले दिन भी इसे लगे हैं फैक्टर। जब अच्छा सारा स्टाफ छुट्टी पे होता है तो मैं कॉल करती हूँ, तो फिर वो अरेंज करते हैं। तो हॉस्पिटल में था एक दफा ये, तो फिर उधर आके दिया वालों ने ना इसे लगाया था फैक्टर, इसकी ब्लीडिंग नहीं थी रुक रही। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि ये जो बीमारी है ये 1-2 दिन की है, या ये फैक्टर लग जाए तो ये सही हो सकते हैं अगर इनको लग जाए तो, या पूरी जिंदगी इसने इस बीमारी में रहना है आलियान ने? अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि ये फैक्टर लगने से आलियान ठीक हो जाएगा? जी नहीं, ये तो पूरी जिंदगी इसकी बीमारी चलनी है। तो फैक्टर लगे तो इसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, ये होता है। ठीक है। अच्छा आलियान, जी, क्या नाम है आपका? पूरा नाम तो बताओ मैं। मोहम्मद आलियान। अच्छा, मोहम्मद आलियान कौन सी क्लास में पढ़ता है? 1 में पढ़ता है। तो आलियान ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि आपको पता ही है कि आप कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, ना अपनी बाबा की तरह बाहर जा सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। तो पढ़ोगे तो फिर कोई काम करोगे ना, अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनोगे, ऐसे ही है। जी, तो अभी ये तुम्हारे नोज से फिर रेड रेड ब्लड निकल रहा है, तो कोई चोट लगती है तो खून निकलता है या वैसे ही निकलना शुरू हो जाता है तुम्हारा? वैसे वैसे ही निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर दर्द भी होती है साथ? इधर दर्द नहीं होती, बस ब्लड ही निकलता है। ब्लड निकल। अच्छा, तो जब ब्लड निकलता है तब आप क्या सोचते हो, क्या बनाया आप? दिल को कुछ होता है? जी, क्या होता है? ऐसे डर लगता है। डर लगता है? डर लगता है, क्या डर लगता है, क्या होगा? वैसे ही डर लगता है कि कुछ हो जाए। कुछ हो जाना। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो अब मुझे ये बताओ कि आप कोई जो लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जोन से देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि अपना सदका ज़कात दिया हॉस्पिटल में जमा करवाएं, ताकि मुझ जैसे हीमोफीलिया के मरीजों का इलाज हो सके। अच्छा जी, हमने जो आलियान है उसकी मदर से भी बात की है, आलियान से भी बात की है। अब हम आलियान की जो सिस्टर हैं बड़ी, उनसे बात करते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं, और पूछते हैं, जिनका नाम कोमल है, कोमल से हम जानते हैं कि जब आलियान की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आप क्या महसूस करती हैं और क्या दुआ करती हैं? क्या हाल है आपका, ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, कोमल, आलियान आपका भाई है? जी, अच्छा, अब मुझे कोमल थोड़ा सा बताएं कि जब आपको पता चला कि आलियान हीमोफीलिया पेशेंट है, तो तब आपके क्या तासरात थे, क्या महसूस किया? लोगों ने आपको डराया भी होना है, सारा कुछ था, तो क्या एहसास थे तब आपके? कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? आलिया मुझसे काफी छोटा भाई है, तो बिल्कुल बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे। तो जब पता चला था कि इसको ये बीमारी है,
तो वो बताने वाली फीलिंग नहीं है, जो ऐसे रोई थी, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी कि अल्लाह ताला ने इतनी देर बाद मेरा भाई भी है तो वो इतना बीमार भी है। तो ये जब कोई एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चे खेलते हैं या घूमते फिरते हैं, तो इसको हम कहते हैं नहीं एक जगह पे बैठो, इधर ना करो, चोट ना लग जाए। तो वो एक दिल को बहुत होता है कि ये क्यों नहीं ऐसा कर सकता, जैसे साइकिल चलाएगा तो कहीं गिर ना जाए या फिर इसको चोट ना लग जाए, तो इसको परेशानी ना हो, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि इसकी रुक नहीं सकती ना। तो फिर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करता है और इतना इसकी ब्लड निकलता है ना कि ब्लड की कमी की वजह से ये बेहोश हो जाता है। तो फिर हम दिया वालों के पास लेके जाते हैं, वो इसको फैक्टर्स वगैरह लगाते हैं, इसको नोज पैक करते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये फिर होश में आता है, ब्लड लगता है इसको। तो फिर ये जब आंखें खोलता है तो ऐसे ऐसे हमें थोड़ी सी जिंदगी हमारी दोबारा से हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं कि हमारा एक ही भाई है वो सही हो गया। तो बहुत बुरा होता है जब इसको तबीयत खराब होती है, ऐसे ऐसे हमारी जान निकल जाती है। तो जब आपने सुना कि ये जो बीमारी है 1-2 दिन की नहीं है, पूरी ज़िंदगी इसने सर्वाइव करना है, होता है ना कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे कैंसर ही ले लें तो उसका ट्रीटमेंट होता है, तो एक उम्मीद होती है कि ये अब बंदा बेहतर हो जाएगा, दोबारा इसको जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपने सुना कि ये हीमोफिलिया जैसी मोज़ी बीमारी में मुब्तला है, तो तब आपकी क्या फीलिंग थी? बहुत बुरी फीलिंग थी, बताने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ पहले तो पता ही था इन चीजों का। जब आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ तो एक ऐसा होता है कि हम मेरा ही भाई क्यों, ऐसे ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी देर बाद दी है, मुझसे 16 साल छोटा है, तो बहुत होता है। तो यही दुआ करती हूँ कि इसकी सारी बीमारी अल्लाह ताला मुझे दे दे, ताकि मेरे माँ बाप का सहारा है ये, तो अल्लाह इसको ठीक रखे, इसको अल्लाह कुछ ना करे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसकी जो ब्लीडिंग होती है, मैंने पहले आंटी से भी पूछा है कि इसके नाक और मुंह से ज़्यादा होती है, ऐसे ही है ना? जी। तो कोई चोट लगती है या वैसे ही होना शुरू हो जाती है? नहीं, ये सोया होता है मोस्टली, जब इसकी ब्लीडिंग होती है ना सोया हुआ होता है। रात के 1-2 का होता है, सुबह 8 बजे का टाइम होता है, सोया होता है तो इसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। चलिए, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए भी। और बस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदों पे आजमाइश उतनी ही डालता हूँ जितनी वो सह सके, ठीक है? तो जब से आप दिया में जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ कभी? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। जिस टाइम कॉल करें, बेशक रात को 10 बजे करें या सुबह 6 बजे करें, दिया वाले हमारे कहते हैं आ जाएं, आप इंस्पेक्टर लिखवाते हैं। छुट्टी वाले दिन भी हम मोस्टली छुट्टी वाले दिन इसकी तबीयत खराब होती है तो हम जाते हैं, हमें फैक्टर वगैरह लगाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे साथ भी बहुत अच्छा ताउन करते हैं। वो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह ही हमें फैमिली समझते हैं अपनी। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहें देखने और सुनने वालों को? ये दिया वाले जो है ना एक नेमत है हमारी तरफ से, अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बना के भेजा मेरे भाई के लिए कि जब भी इसकी तबीयत खराब होती है तो इसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, दिन हो या रात हो। जब भी हम हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो हमें मेरे भाई का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे, ताकि मेरे भाई जैसे भाई हैं उनकी जिंदगी जो है ना बच सके। जी आंटी, जैसे कि आलियान की बहन जो कोमल है उसने भी मैसेज दिया है और बताया है कि उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब इसका ब्लड निकलता है और क्या तकलीफ़ वो महसूस करती है। ज़ाहिर सी बात है, जो तकलीफ़ एक माँ महसूस कर सकती है, बहन महसूस कर सकती है या उनके जो वालिद साहब हैं वो महसूस कर सकते हैं, वो हम तो महसूस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं ये चाहूँगी कि आप कोई मैसेज जो है वो देना चाहते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो किस तरह आपके बेटे की और इसके साथ साथ दूसरे जो हीमोफिलिया मरीज़ हैं उनकी मदद कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे और ये दूसरे बच्चे जो हीमोफिलिया के पेशेंट हैं उनकी मदद करें, सबका ज़कात तराना दें दिया वेलफेयर में, ताकि उनका इलाज हो सके, डॉक्टर लग सके। संटी, मुझे ये बताएं कि आप मुतमिन हैं कि आपके बच्चे का इलाज सही जगह पे हो रहा है? जी। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए जाते किसी किस्म के? नहीं, मैं मुतमिन हूँ, मेरे बच्चे का इलाज सही हो रहा है, तो पैसे नहीं लिए जाते, फ्री वो फैक्टर लगाते हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार को बरकत दे। चले, बहुत शुक्रिया आंटी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी पूरी कोशिश है
मेरी पूरी टीम की भी पूरी कोशिश है कि हम हर लिहाज से आपके साथ, आपके बच्चों के साथ चलें, और हमने हमेशा आपको अपना फैमिली मेम्बर समझा है, और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम आपको एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।